Welcome students. In the last video, I explained how to work with read, readline and readlines function in order to read data from a text file. Okay, and I told you that I'll be showing the practical demonstration of these three functions in the next video. So here it is. Let us see these functions practically. So the first point that I told you about reading text from a text file is that the file must exist already whenever you are opening a file for reading. Otherwise, input-output error is raised. So let us see what happens when you read from an empty file or when you read from a file that is not existing. Okay, so for this I am simply opening a file and I am writing f is equal to open, and here I am going to write a name of the file which is not existing on my system. So suppose I write math.txt. This is some unknown file which is not existing in my system and I want to read data from it. Okay, so for reading, what I am doing, s is equal to f dot read. I am making use of read function to read the contents of this file, and once I have read the content, I am printing the value of s and then f dot close. Okay, so if this file will be existing, data will be read and stored in the variable s and then s will be printed. आपको मालूम है कि read function में जब हम कुछ भी पास नहीं करते हैं तो ये पूरा कंटेंट रीड करके एक ही बार में s में स्टोर कर देगा और s प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, so let us first save this file. Control S. I am saving this file by the name T1. Okay, so T1 is the name of my .py file and I am interacting with math.txt file. So let us run this. I have pressed F5 and see what error I am getting. I am getting input-output error saying file not found error. This means that math.txt file is not existing on the system, so I cannot perform any kind of read operation from this file. So remember, this point is very important. Clear? Now I am going to illustrate the use of read function. Okay, so for this I am opening a new file and this is the .py file and I am writing f is equal to open. Now see children, again I must have some file existing on my system so that I can read data from it. Okay, so I am telling you, first of all I am telling you a shortcut way of creating a text file. आपको प्रोग्रामेटिकली टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट करनी है और उसमें डेटा कैसे लिखना है ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था. लेकिन when you are only concerned about reading the text from a text file and if that text file is not existing already, what you can do is you can opt for this shortcut method to create the text file for that particular time. Okay, so for this click on file menu and then open a new file, and in this new file you just write some content that you want to read. Okay, so I am writing here my name is Rajiv. This is my first line. Then I am 33 years old and he lives in Gomti Nagar. So I have saved this much data. ठीक है, और इसके बाद देखिए मैं इसको कैसे सेव कर रही हूँ और किस एक्सटेंशन से सेव कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन सेव एज. ठीक है, और उसके बाद आपको
इसे कुछ नाम देना है. सपोज यू गिव द नेम एज bin.txt. So bin is a file that you want to keep the name that you want to keep for this text file and see the extension .txt. ठीक है, सेव. अब ये शॉर्टकट मेथड से मैंने एक फाइल रेडी कर ली है, इसको मैं मिनिमाइज कर रही हूँ एंड नाउ आई एम ओपनिंग bin.txt इन माय प्रोग्राम. ठीक है, और इसी से हम रीडिंग करेंगे. सो कॉमा r. If you want you can skip the r mode because by default फाइल रीडिंग मोड में ही ओपन होती है. ठीक है, एंड दिस टाइम s is equal to f.read. f is my फाइल हैंडल. ठीक है, और मैंने क्या किया, पूरा डेटा एक बार में रीड कर लिया. मैंने कोई भी वैल्यू नहीं पास की है रीड फंक्शन में, तो उससे क्या होगा, फाइल का कंटेंट पूरा रीड हो जाएगा और s में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. एंड देन आई एम प्रिंटिंग s एंड आई एम क्लोजिंग द फाइल. Now save this file. This is my .py file. So I am pressing Ctrl S and saving it by the name T2. This is T2.py file and I am interacting with bin.txt. ठीक है, अब इसको रन करते हैं. See, पूरा कंटेंट रीड हो गया. जो भी मेरा कंटेंट था, I am showing you the file also. देखिए bin.txt फाइल ये थी मेरी, इसको थोड़ा स्मॉल कर रहे हैं. देखिए इसका पूरा कंटेंट यहाँ पे रीड होके आ गया, प्रिंट हो गया. ठीक है, अब सपोज आई वांट टू पास सम वैल्यू इन रीड फंक्शन, मतलब मुझे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स रीड करने हैं. तो सपोज आई एम सेइंग आई वांट टू रीड जस्ट 15 और सपोज आई से फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स मुझे रीड करने हैं. क्योंकि जब मैं फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करूंगी तो क्या होगा, कर्सर मेरा बिगनिंग में होगा, तो बिगनिंग से ही रीडिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, और मैं पहला रीड ऑपरेशन कर रही हूँ, तो पहला रीड ऑपरेशन तो बिगनिंग से ही होगा. फिर नेक्स्ट रीड ऑपरेशन जहां आप छोड़ेंगे वहां से होगा. तो इसको अब सेव करके फिर से रन कर रहे हैं. आपकी बार देखिए फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स मेरे रीड हो गए. फाइल ये थी bin.txt, फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स उसने रीड करके आपको प्रिंट कर दिया. ठीक है, अब फिर से आई एम मिनिमाइजिंग दिस फाइल और इस पे वापस आए. और अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 200 दे देती हूँ. अब मुझे मालूम है कि मेरे फाइल में 200 कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन तब भी मैंने दे दिए. तो ये क्या करेगा, अवेलेबल नंबर ऑफ बाइट्स को रीड कर लेगा और प्रिंट कर देगा. तो Ctrl S F5. आपकी देखिए इसने पूरा कंटेंट रीड कर लिया, क्योंकि मैंने 200 बाइट्स बोले थे लेकिन 200 बाइट्स मेरे फाइल में है नहीं, तो इसने क्या किया, जितने हैं उतने रीड कर दिया, आपको एरर नहीं दिया. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द रीड फंक्शन. ठीक है, नाउ सी, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम 1 by 1 कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस फंक्शन रिटर्न्स, आपको मैंने बताया था ना, दिस फंक्शन रिटर्न्स अ नल स्ट्रिंग एज सून एज एंड ऑफ फाइल कम्स. तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस स्टोर करके रखा है और फिर मैं लूप चला रही हूँ while s नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, मतलब नल स्ट्रिंग, सॉरी. ठीक है, उसके बाद आई एम printing s. No, I am first of all reading data in s f dot read. और देखिए एक एक कैरेक्टर रीड करेंगे. ठीक है, मैंने इसके दो तरीके आपको पिछले वीडियो में बताए थे. I am just implementing one. अब देखिए मैंने एक एक कैरेक्टर रीड किया, s में स्टोर कर दिया. अब जैसे ही s में नल स्ट्रिंग आएगी, एंड ऑफ फाइल आ जाएगा और आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड यू विल क्लोज द फाइल. ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ. प्रेस Ctrl S एंड देन F5. अब देखिए ये आपका सारा कंटेंट उसने रीड करके एक कैरेक्टर एक लाइन पे लिख दिया. ठीक है, अब देखिए ये मेरी फाइल थी t2.txt. इसमें मैंने क्या किया था, एक एक कैरेक्टर रीड करके उसको प्रिंट करा रही थी. तो हर कैरेक्टर एक एक लाइन पे आएगा. तो मेरे फाइल में जितने कैरेक्टर हैं सारे एक एक करके रीड हुए.
अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको एग्जामिन करना हो कैरेक्टर का, तो इसी लाइन के बाद, ठीक है, इस लाइन के जस्ट बाद आप अपनी प्रोसेसिंग का काम कर दो कि इफ S is alphabet then count it, ठीक है. So this kind of work can be done. Next is your read line function. Okay, so I am just eliminating this much portion. अब रीड लाइन फंक्शन आपको शो करते हैं. तो रीड लाइन क्या करता है, एक बार में एक लाइन रीड करता है, ठीक है. तो what I am going to do is S is equal to F dot read line, ठीक. और हमने क्या किया, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो ये क्या करेगा, पहली लाइन पूरी रीड कर लेगा. S को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है. उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, X is equal to F dot read line और मैंने दे दिया 5, मतलब अब दूसरी लाइन के सिर्फ 5 कैरेक्टर रीड होंगे X में, और X को हम प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक. फिर मैं Y में क्या कर रही हूँ, F डॉट रीड लाइन, मतलब अब सेकेंड लाइन पूरी तो रीड हुई नहीं थी, तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट रीड लाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो Y वाला रीड लाइन ऑपरेशन होगा, ये उसी लाइन पे होगा जहां से आपने अभी X में छोड़ा था. मतलब जो लाइन यहाँ पे रीड हो रही थी उसके 5 कैरेक्टर्स के बाद कर्सर हमारा वेट कर रहा था. अब ये जो नेक्स्ट 20 रीड होंगे ये उसी जगह से आगे रीड होंगे, ठीक है. तो मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाती हूँ. यहाँ पे एक चीज लिख दूं S इज इक्वल टू, तो आपको समझ में आएगा कि किस में क्या चीज स्टोर हो रही है. X इज इक्वल टू and then Y is equal to. Now let us save this code and run it. I am just opening a new file for this, so I am running it again. मैं चाहती हूँ कि इसका आउटपुट नए फाइल पे आए, मतलब नए स्क्रीन पे आए. तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल ये थी आपकी bin.txt, ये फाइल थी. अब आप देखिए इससे पहले आपने क्या किया था, सी हियर, पहला रीड लाइन यहाँ से किया तो सिर्फ पूरी लाइन रीड की, ठीक है, ये पूरी लाइन रीड हो गई. उसके बाद आपने की S इज इक्वल टू प्रिंट करा दिया, तो S इज इक्वल टू में पूरी लाइन प्रिंट हो गई. फिर आपने लिखा F डॉट रीड लाइन 5, तो पिछली बार से हम कहाँ पे रुके थे, सेकेंड लाइन पे रुके थे. कर्सर का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड लाइन पे रुके थे और सेकेंड लाइन में हमने पहले 5 कैरेक्टर रीड किए, तो उस लाइन के 5 कैरेक्टर्स वो रीड कर लेगा. तो देखिए इसने 5 कैरेक्टर्स रीड किए इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक इसने रीड कर लिया, देखिए M के बाद स्पेस, ठीक है. उसके बाद उसने X में उसको स्टोर किया और X को प्रिंट कर दिया. फिर उसके बाद जब हमने नेक्स्ट रीड लाइन किया ये वाला, तो उसने वहीं से स्टार्ट किया जहां से उसने पिछले रीड लाइन में छोड़ा था. यहाँ से छोड़ा था, M के बाद स्पेस के बाद उसने छोड़ा था. 33 से लेके देखिए ओल्ड तक रीड किया, नेक्स्ट लाइन पे रीडिंग के लिए नहीं गया, जबकि उसे 20 कैरेक्टर्स नहीं मिले थे, लेकिन तब भी वो जितने मिलेंगे उस लाइन में उतना रीड करके काम खत्म कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे बचे हुए कैरेक्टर्स लेने नहीं जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इस जगह पे देखिए उसको लाइन चेंज मिला था, इसलिए यहाँ पे लाइन चेंज है. यहाँ पे उसे लाइन चेंज नहीं मिला तो लाइन चेंज नहीं है. लेकिन D के बाद देखो ओल्ड के बाद लाइन चेंज है ना, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन ब्लैंक लाइन स्पेस ब्लैंक लाइन प्रिंट हो रही है. तो ये मैंने पॉइंट्स आपको पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है. यू कैन रिलेट इट फ्रॉम देयर. सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ रीड लाइन फंक्शन. सो here you saw how to make use of read line function in these 3 ways. Now you know that read line function can be used to read all the lines one by one also. So now I'm going to illustrate that point to you. तो देखिए इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, I am opening
नो, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस कंटेंट। और इस बार मैं क्या करूंगी, एक एक लाइन रीड करूंगी और मुझे आपको मालूम है कि एज सुन एज एंड ऑफ फाइल विल कम, व्हाट विल हैपन, इट विल रिटर्न, रीड लाइन फंक्शन विल रिटर्न अ नल स्ट्रिंग। तो उसके हेल्प से हम एंड ऑफ फाइल सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले स्पेस स्टोर किया, ठीक है, और एक लूप चलाया व्हाइल s इज नॉट इक्वल टू नल स्ट्रिंग। तो जब तक नल स्ट्रिंग नहीं होगा तब तक हमें लाइन रीड करने को मिलती रहेंगी। तो हम फाइल से रीड लाइन करते रहेंगे, ठीक है, और s में स्टोर करके s को प्रिंट करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही s में नल स्ट्रिंग, जैसे ही एंड ऑफ फाइल आएगा, s में क्या रीड हो जाएगा, नल स्ट्रिंग रीड हो जाएगा। तो जब नल स्ट्रिंग रीड होगा तो आप लूप की कंडीशन, इस कंडीशन पे नल स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद जब आप इस कंडीशन पे आएंगे तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड यू विल कम आउट ऑफ द लूप एंड प्रिंट मीन्स f डॉट क्लोज, ठीक है। अगर आपको एंड यूजर के लिए कुछ लिखना है तो यू कैन राइट ऑल्सो, बट आई एम नॉट राइटिंग, सो आई एम सेविंग इट एंड देन रनिंग इट। See here, this was my previous output. अब देखिए मैंने क्या किया, I am showing you the content of file also. So see, this is the content of the file. हाँ, so here is the content of the file and this is the output. अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली लाइन रीड हुई, प्रिंट हो गई, ठीक है, यहाँ पे फिर दूसरी लाइन रीड हुई, प्रिंट हो गई, तीसरी लाइन रीड हुई, प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद जब उसने नेक्स्ट लाइन रीड करने की कोशिश की तो फाइल का कंटेंट खत्म हो गया। जब फाइल का कंटेंट खत्म हो गया तो एस में क्या रीड होके आया, नल स्ट्रिंग। तो नल स्ट्रिंग भी प्रिंट हुई, नल स्ट्रिंग प्रिंट करने के बाद लाइन भी चेंज हुई, लेकिन जब आप लूप में वापस गए तो कंडीशन फॉल्स हो गई और इसलिए आप लूप से टर्मिनेट हो गए और फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन छूटी है, यहाँ पे एक लाइन है, लेकिन यहाँ पे दो लाइंस ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि आपने जब ये लाइन रीड की थी, ठीक है, ये वाली, तो राजीव के बाद एक लाइन चेंज कैरेक्टर था ना, और प्रिंट भी लाइन चेंज करता है। तो यहाँ राजीव लिखने के बाद वो जो लाइन चेंज कैरेक्टर था उससे आप यहाँ पे आए, लेकिन इस लाइन पे नेक्स्ट प्रिंटिंग नहीं हुई क्योंकि प्रिंट फंक्शन भी लाइन चेंज करता है, इसलिए आप यहाँ पे आए और तब आपका नेक्स्ट प्रिंट हुआ। सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो। ओल्ड के बाद देखिए लाइन चेंज था तो वो लाइन चेंज से कर्सर यहाँ आया और उसके बाद प्रिंट ने एक लाइन चेंज कराया तो हम यहाँ आ गए, ठीक है। फिर जब हमने ये वाली लाइन रीड की तो गोमती नगर के बाद लाइन चेंज था तो उसकी वजह से यहाँ आए, फिर प्रिंट ने लाइन चेंज कराई तो यहाँ आए। लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद नल स्ट्रिंग रीड हुआ तो नल स्ट्रिंग ने क्या किया, नल स्ट्रिंग प्रिंट हुई और उसके बाद लाइन चेंज हुई, इसलिए ये लाइन एम्प्टी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग दिस आउटपुट। सो this was all about your read line function and now I am going to show you read lines function, ठीक है। अब read lines function में हम क्या करते हैं, I am just removing these lines. read lines function हमारे लिए एक बार में ही सारी लाइंस रीड करके एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो मैंने एक lst नाम का वेरिएबल बनाया है एंड within this I am writing f dot read lines, ठीक। अब ये read line फंक्शन में हमें कुछ नहीं देना होता है, ये क्या करेगा, bin.txt की तीनों लाइनों को एक बार में रीड कर लेगा और हर लाइन के एंड में लाइन चेंज कैरेक्टर लगाएगा, फिर उन तीनों लाइंस को एक लिस्ट में रैप करके रिटर्न करेगा जिसको हमने lst में रिसीव किया। तो lst को हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट lst, ठीक है। और आपको ये पता चले कि lst का टाइप क्या है, ठीक है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू रीड लाइंस फंक्शन रिटर्न्ड, उसके लिए मैं टाइप ऑफ lst भी प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एंड नाउ आई एम सेविंग द कोड एंड देन रनिंग इट। सी व्हाट हैपेंड, 3 लाइंस थे मेरे फाइल में, देखिए फाइल
ये थी 3 लाइन्स है, तीनों लाइन रीड हो गई और उनके साथ लाइन चेंज कैरेक्टर सिस्टम ने लगा दिया, मतलब रीड लाइन्स फंक्शन ये काम करता ही है. दिस वर्क वॉज नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ रीड एंड रीड लाइन फंक्शन. रीड और रीड लाइन में ऐसा नहीं होता है, अपने आप लाइन चेंज कैरेक्टर नहीं लगता है, लेकिन इसमें लगता है. ठीक है, ये डिफरेंस है. और एंड सी व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज एलएसटी लिस्ट. तो इट reads all the lines, attaches line change character at the end of each line and then returns it in the form of a list. Okay, so this is the purpose of read lines function. और मैंने आपको बताया था कि whenever you read from an empty file using read lines function, ये empty list return करता है. ठीक है, तो मेरे पास एक फाइल है empty.txt, मेरे सिस्टम में वो ऑलरेडी है, मैं आपको भी शो कर दूंगी. ठीक है, और मैं इससे क्या कर रही हूँ, रीड लाइन्स कर रही हूँ. ठीक है, अब मैं आपको पहले empty.txt फाइल शो कर देती हूँ, विच इज नॉट कंटेनिंग एनी कंटेंट, एम्प्टी ही है वो. ठीक है, देखिए ये मेरी empty.txt फाइल है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट साइज में करके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेव एंड रन दिस. सी व्हाट आई गॉट. मेरी फाइल क्या थी, कुछ नहीं था इसमें रीड करने को, तो उसने क्या किया, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न की, क्योंकि कुछ रीड करने को था ही नहीं फाइल में, तो उसने एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करी. यू आर रीडिंग फ्रॉम एन एम्प्टी फाइल, या फिर एंड ऑफ फाइल आ जाएगा तब भी एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है. ठीक है, टाइप ऑफ एलएसटी प्रिंट किया तो लिस्ट प्रिंट हुआ. ठीक है, so this was all about children read line and read lines function practical demonstration. I think all of you must have understood. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.